Good morning, everyone. Class 10th. Today we will start chapter 5, Arithmetic Progressions, exercise 5.3, page number 112. Question number first of first. जैसा कि हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, लिमिटेड फार्मूलाज हैं इसमें, है ना, मैक्सिमम 3-4 फार्मूलाज हैं और उसी पर पूरी एक्सरसाइज डिपेंड करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, प्लीज सी योर बुक। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, सी योर बुक। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज 2, 7, 12 2, 7, 12 dot 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 2, 10 theta. This is the question. What if now we have given in this arithmetic progressions, given in this AP 2. 2 is the first sum, that is A. A is equal to say 2. And common difference B, 7 minus 2 is 5. And last number of terms A is equal to 10. और फाइंड करना है हमको सम, फाइंड इज इक्वल टू SN। सम फाइंड करना है इस अरिथमेटिक क्वेश्चंस का। ये अरिथमेटिक क्वेश्चन है और 10th टर्म तक है, तो इनका टोटल सम क्या होगा। दो फार्मूले हम यूज कर सकते हैं इसमें, है ना। एक तो हम SN के देयर आर 2 फार्मूलाज, दोनों ही फार्मूले से मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट इज दैट देखिए, मेरा फार्मूला लिख दूं मैं, तब आपको बताऊंगा। दो फार्मूले जो SN के हैं, फर्स्ट फार्मूला n/2 into A plus L. This A is the first term, L is the last term, correct? And second फार्मूला हमारे पास SN का है। SN is equal to, बोलो तो फार्मूला n by 2 multiply by 2A plus n minus 1 into D. These are the two formulas we have for finding the SN. अब आपके पास यहाँ पर A है, B है और N है। हम फर्स्ट फार्मूला को ये इंप्लीमेंट कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हम ये फार्मूला इसलिए इंप्लीमेंट नहीं कर सकते कि इसमें हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है। तो लास्ट टर्म हमको फाइंड करना पड़ेगी, तो हम ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। बट ये सब दोनों फार्मूले से, तो मैं दोनों फार्मूले से बता रहा हूं। फर्स्ट मेथड, SN is equal to n by 2 square bracket start 2A plus n minus 1 into B. Then SN is equal to n is 10 divided by 2 into 2 multiplied by A is equal to 2 plus n is equal to 10 minus 1 into B is 5. Then SN is equal to 2 under 2 5 are 10. We will write here. May I have the formulas, please? May I have the formula? Yes, sir. You should be remember second formula. We will use this. SN is equal to 5 into 2 2s are 4 plus 9 multiply by 5। तो BODMAS रूल यूज करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस करेंगे। SN is equal to 5 multiply by 9 by 45 plus 4 40। Then SN is equal to 5 9 the 45 84 5 4 20 plus 4 is 20 2
245 is the sum of these 18. Second method. Second method is we have to find the last one. Last one means an. Then we have to find the an. An is equal to a plus into d. Then an is equal to, and an is the 10th term. आ गया ना समझ में? A is equal to 2 plus 10 minus 1 into 5. A10 is equal to 2 plus 9 5 then A10 is equal to 47. This is the last one, A10, 10th term. Now, Sn is equal to n upon 2 into a plus l. L means A10. L means what? A10. L is equal to last one. Then Sn is equal to n is 10, number of terms 10 upon 2 into a is 2 plus l is 47. 2 1 2 5 Sn is equal to 5 multiplied by 40. Then Sn is equal to 240. Is that so? Yes, sir. Yes, sir. Do you understand? Yes, sir. Then we have done this sum by two methods. Can I repeat? Yes, sir. जब आपको ये लोड होगा तो आप इसमें से नाउ क्वेश्चन नंबर 2. तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. इसमें आपने देखा कि कैसे फाइंड करने के हमारे पास दो तरीके हैं. क्वेश्चन नंबर Second का first. सेकंड का फर्स्ट. Sir. Find the Sir. question number second. Find the sums given below. 7 plus 10 whole 1 by 2 plus 14. plus So all plus 84. plus 84. the last one is we have given it. C given in this again. A is equal to 7. A is equal to 84. 84, right? And D is equal to 10 to the 20 plus 1, 21 upon 2 means 10.5 or 10.5 minus 7 is equal to 3.5. Do you understand everyone? Yes, sir. आ गया समझ में common difference? And we are finding the sum. Find is equal to sum. Sn. Then as we know that there are two formulas और दोनों ही फार्मूला में n था. n मतलब number of terms. तो number of term हमको find करना जरूरी है. Then first we have to find the number of term n. Then n is equal to a plus a minus 1 multiplied by b. A we have 84. is equal to a is plus a minus 1 multiplied by b is equal to a. Do you understand all those friends? Yes, sir. Then 84 is equal to 7 plus 3.5 multiplied by a is 3.5 a minus 3.5 on the. Divided by 5. This is 7 minus 3.5. So 7 is 3.5 minus करेंगे तो remaining will be 4.5. अरे बेटा 3.5 plus 3.5 7 होता है.
हाफ है ना जस्ट Yes. and plus 3.5 this digit will go there in minus. Got it? Yes, sir. Then 3.5 n is equal to 84 minus 3.5. और कैसे माइनस कर रहे हैं हम लाइक कर में कन्वर्ट करके 84.0 डेसिमल के नीचे डेसिमल 3.5 like that. Understand? And 10 minus 5 is 5. 4 minus 3 is Sir, sorry 3 minus 3 is 0 and this is 8. And point as it is. Got it? Then 3.5 n is equal to 80.5. Clear? And n is equal to 80.5 divided by 3.5. Here is also after one digit decimal. Here is also after one digit decimal. Then we can remove it. Okay? And 5 7 ja 35. 5 1 ja 3 बचा. 5 6 ja 30. 5 1 ja. Then again 7 1 ja 7 2 ja 14 और 7 3 ja n is equal to 23 number of terms. n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 23 terms. And now we will find what we will find Sn. Last term और first term है then n upon 2 into a plus l and where l is equal to last term. Yes, 84. Sn is equal to n is 23 upon 2 multiply by a we have 7 plus l is then Sn is equal to 23 upon 2 multiply by 7 plus 4 11 का 1 carry अरे 7 plus 4 11 8 और 1 9. अब आप देखिए इसका जो सम आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा जो भी मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे दैट विल बी द सम ऑफ द AP. What is the answer? It was the question. हाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं ना है बेटा 1046.5 1046.5 इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल कम. गॉट इट? आ गया समझ में? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 वी विल स्टार्ट. सी द बोर्ड प्लीज. ये लास्ट तक आ रहा है ना बेटा मेरे को देखने दो क्या. यस बेटा ठीक है शाबाश. नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड we start the next sum. Yes, sir. Question 3. Given a is equal to 5, d is equal to 3, n is equal to 50 and n find n and s. Third का first. A is equal to 5 next. B is equal to B is equal to find n. It is very simple. First and second question हम दोनों चीज फाइंड कर चुके हैं. Right? First we have to find n
So n is equal to A plus n minus 1 into A. n minus 1. B. अच्छा इसमें भी है, हाँ ठीक है, n minus 1 into B. b. n is equal to 50. 50 A is plus equal to 5. n minus 1 into 3. 3. 3. Now see please, 50 into 5 plus 3n minus 3n. Then 50 is equal to 5 minus 3 is 2 plus 3. 2 will go there in minus 50 minus 2 is equal to 3n. Then 3n is equal to 48. Then n is equal to 48 divided by 3. 3 1 जा 3, 3 1 जा 3. Remaining 1 3 6 जा 18. n is equal to 16. number of terms कितनी हुई? 16. And now we are finding sums. Sn. Second case. Sn is equal to n by 2 into a plus n. First term और last term आ गई. A plus B. Last term है क्या ना आपके पास? Yes, a sir. 50. Sn is equal to n number of terms 16 divided by 2 into a is equal to 5 plus 50 plus 50. 2 1 जा 2, 2 8 जा 16. 8 multiplied by, 55. then Sn is equal to 8 5 is a 40, carry 8 5 is a 40 plus 4, 49. huh? Sir, 4 पे तो के 8 5 is a 40 का 0 carry 4, 8 5 is a 40 plus 4 44. 34. Yes. Clear? Yes, sir. Any doubt? No, sir. Now question number 4 we have to start it. See the book and we start question number 4. In the question number 4, how many terms of AP? See in your book, please. I am giving the hint. How many terms of AP? 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636. ये एपी आपको दी गई है, इसमें कितनी टर्म होगी? नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, एन फाइंड करना है, सम भी दिया है. आप इसी फार्मूले से ये सम की वैल्यू लिखेंगे. नंबर ऑफ टर्म्स दिए क्या इसमें? नहीं दिए. एन फाइंड करना है. मतलब फर्स्ट टर्म दिए Yes, sir. 9. 9 है ना? फर्स्ट टर्म 9 दिए, लास्ट टर्म नहीं है आपके पास और सम है, तो लास्ट टर्म इससे फाइंड, तो दो और क्वांटिटी रहेगी ना, तो ये फार्मूला हम नहीं लगा पाएंगे. हम इसमें क्या करेंगे? फार्मूला लगाएंगे सम का दूसरा वाला. Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है? a भी है और d हम फाइंड कर लेंगे और Sn भी है, तो क्या आ जाएगा? इससे n आ जाएगा. क्या आ जाएगा बेटा? और n आ जाएगा. हमको क्या फाइंड करना है इसमें? n ही फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? n फाइंड करना है. ठीक है. और इसमें आपको मैं एक बात और बता देता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उसके फैक्टर मेथड करेंगे. n की 2 वैल्यू आएगी. समझ में आया? कितनी वैल्यू आएंगी? n की 2 वैल्यू आएगी. तो जो पॉजिटिव, अगर एक डिजिट पॉजिटिव आती है और एक नेगेटिव आती है, तो जो पॉजिटिव होगा वो रिजेक्ट करना है आपको. नॉट पॉसिबल, क्योंकि एपीज की नंबर्स जो है माइनस में नहीं हो सकती ना. अपन ये थोड़ी कहेंगे कि इसमें -10 टर्म्स है, हम तो काउंट करेंगे 1 2 3 पॉजिटिव नंबर होंगे ना. नेगेटिव तो हो नहीं सकते ना बेटे. Yes, sir. तो नेगेटिव वाले 2 आंसर आने पर नेगेटिव को हम रिजेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव आंसर लेंगे. ये आपको करना है. आई हैव एक्सप्लेन दिस सम कंप्लीट एसएन का फार्मूला करके. बिल्कुल मैंने कर दिया है, मान के चलिए आप, क्योंकि एक एक क्वेश्चन अब आपको, अब मैं अगला 5th क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 5, सी द बुक. द फर्स्ट टर्म ऑफ NAP is 5.
एपी की फर्स्ट टर्म क्या है 5, ए इज इक्वल टू क्या दिया आपको 5. एंड द लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म आपको दिया है एन 45 एंड द सम इज 400 और सम दिया है एस एन 400. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस. वेरी सिंपल. इसमें आपको फर्स्ट वाला सम का फार्मूला ये वाला लग जाएगा. फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया है, इससे क्या आ जाएगा एन, इससे आ जाएगा एन और क्या फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस है फर्स्ट टर्म है तो सेकंड टर्म फाइंड हो ही जाएगी. a2 इज इक्वल टू a प्लस डी, a प्लस डी. आ गया समझ में? हाँ, कॉमन डिफरेंस प्लस कर देना फर्स्ट टर्म में तो सेकंड आया कि नहीं आया? ठीक है, अभी करना. अभी गॉट इट. तो हमने इसमें क्या क्या फाइंड कर लिया बेटे? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, है ना? ठीक है, चलिए. और आप डी उससे भी फाइंड कर सकते हैं आप. वो जो अपना फार्मूला है ए एन वाला, उसमें भी डी आ जाएगा डायरेक्ट. ठीक है, क्योंकि एन इधर आ ही चुका है तो डी उससे आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6. द फर्स्ट and the last term of an AP are 17 and 350 respectively. 17 फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म क्या दे दिया आपको 350 एंड एल दे दिया है आपको, बराबर. इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 और कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम. इसमें कितनी टर्म है और उनका सम क्या है. तो पहले तो आपको एन फाइंड करना है. ठीक है, एन से क्या फाइंड हो जाएगा अपना एन. एन क्या फाइंड होगा क्योंकि एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और एन दिया 350 और फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू भी दी है ना और कॉमन डिफरेंस भी दिया है. तो फिर आपका इसमें एन आ गया कि नहीं आ गया? और फिर वापस आप क्या करेंगे एस एन का फार्मूला लिखेंगे. ठीक है, और फर्स्ट आंसर आ जाएगा. आ गया समझ में? वेरी क्लियर. इस तरह सारे समय आप करिए, जो नहीं आएगा मैं बताऊंगा. यू शुड स्टार्ट योर प्रैक्टिस और नहीं आए वो मेरे से पूछेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच. स्टार्ट द वर्क.